أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا واللہ اشد بأسا واشد تنقیلا. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. تو اے محبوب اللہ کی راہ میں لڑو، تم تکلیف نہ دیے جاؤ گے مگر اپنے دم کی، اور مسلمانوں کو آمادہ کرو. قریب ہے کہ اللہ کافروں کی سختی روک دے، اور اللہ کی آنچ سب سے سخت تر ہے اور اس کا عذاب سب سے کرا. ترجمہ کنز العرفان. تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو. ان قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے. فقاتل فی سبیل اللہ. تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بدر صغریٰ، چھوٹا غزوہ بدر، اس کی جنگ جو ابو سفیان سے طے تھی، جب اس کا وقت آ پہنچا تو سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی. بعض لوگوں پر یہ گرا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں اگرچہ تنہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا ناصر و مددگار ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. یہ حکم پا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر صغریٰ کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور صرف 70 سوار ہمراہ تھے. چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور اگرچہ آپ اکیلے رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو. اور بس پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آ سکے. اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہے کہ آپ کو تنہا کفار کے مقابلے تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شجاعت و بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسے بہادر صحابی کا قول یہ ہے، جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھی، اس وقت میں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम के पहलू में खड़े होकर अपना बचाव करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब लोगों से ज्यादा आगे बढ़कर और दुश्मनों के बिल्कुल करीब पहुंचकर जंग फरमाते थे और हम लोगों में सबसे ज्यादा बहादुर वो शख्स शुमार किया जाता था जो जंग में हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब रहकर दुश्मनों से लड़ता था। ग़ज़वा-ए हुनैन के दिन जब इब्तिदाअन मुसलमान कुफ़ार के हमले की ताब न लाते हुए मैदान जंग से फरार हुए तो ऐसे नाजुक वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कदम भी पीछे नहीं हटे बल्कि अपने सफेद खच्चर पर सवार दुश्मनों की जानिब पेशकदमी फरमाते रहे। ग़ज़वा-ए अहज़ाब के मौके पर खंदक खोदते हुए एक ऐसी चट्टान ज़ाहिर हुई जो किसी से न टूट सकी। सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बार से वो चट्टान पारा पारा हो गई। एक रात अहले मदीना एक खौफनाक आवाज सुनकर दहशत ज़दा हो गए तो उस आवाज की सिमत सबसे पहले हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तुम हो हफीज व मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस, तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहू नसीबुम मिनहा व मन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहू किफ़लुम मिनहा व काना अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। तर्जमा कंजुल ईमान, जो अच्छी सिफारिश करे उसके लिए उसमें से हिस्सा है और जो बुरी सिफारिश करे उसके लिए उसमें से हिस्सा है और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तर्जमा कंजुल इरफान, जो अच्छी सिफारिश करे उसके लिए उसका अजर है और जो बुरी सिफारिश करे उसके लिए उसमें से हिस्सा है और अल्लाह हर शय पर कादिर है। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसना, जो अच्छी सिफारिश करे, अच्छी सिफारिश वो है जिसमें किसी को जायज नफा पहुंचाया जाए या तकलीफ से बचाया जाए, इस पर सवाब है जैसा कोई नौकरी का वाकई मुस्तहिक है और किसी दूसरे की हक तलफी नहीं हो रही हो तो सिफारिश करना जायज है। या कोई मजलूम है और पुलिस से इंसाफ दिलवाने में मदद के लिए सिफारिश की जाए। बुरी सिफारिश वो है जिसमें गलत सिफारिश की जाए, जालिम को गलत तरीके से बचाया जाए या किसी की हक तलफी की जाए, जैसे किसी गैर मुस्तहिक को नौकरी दिलाने के लिए सिफारिश की जाए या किसी को शराब या सिनेमा के लाइसेंस दिलवाने के लिए सिफारिश की जाए, ये हराम है। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्ली शैइन हसीबा। तर्जमा कंजुल ईमान, और जब तुम्हें कोई किसी लफ्ज से सलाम करे तो तुम उससे बेहतर लफ्ज जवाब में कहो या वही कह दो, बेशक अल्लाह हर चीज पर हिसाब लेने वाला है। तर्जमा कंजुल इरफान, और जब तुम्हें किसी लफ्ज से सलाम किया जाए तो तुम उससे बेहतर लफ्ज से जवाब दो या वही अल्फाज कह दो, बेशक अल्लाह हर चीज पर हिसाब लेने वाला है। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यत, और जब तुम्हें किसी लफ्ज से सलाम किया जाए, इस्लाम से पहले अहले अरब की आदत ये थी कि जब वो एक दूसरे से मिलते तो कहते हय्याक अल्लाह, यानी अल्लाह ताला तुझे जिंदा रखे। और जब दीन इस्लाम आया तो उसमें इस कलमे को सलाम से तब्दील कर दिया गया और ये कलमा हय्याक अल्लाह के मुकाबले में ज्यादा कामिल है, क्योंकि जो शख्स सलामत होगा वो लाजमी तौर पर जिंदा होगा और सिर्फ जिंदा शख्स सलामत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी मुसीबतों और आफात से मिली हुई है।
इस आयत में सलाम के बारे में बयान हुआ। इस मुनासबत से हम यहाँ सलाम से मुताल्लिक चंद शरई मसाइल जिक्र करते हैं। एक, सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना फर्ज, और जवाब में अफजल यह है कि सलाम करने वाले के सलाम पर कुछ बढ़ाए। मसलन पहला शख्स अस्सलामु अलैकुम कहे तो दूसरा शख्स व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह कहे, और अगर पहले ने व रहमतुल्लाह भी कहा था तो ये व बरकातु और बढ़ाए। बस इससे ज्यादा सलाम जवाब में कोई इजाफा नहीं है। दो, काफिर, गुमराह, फासिक और इस्तिंजा करते मुसलमानों को सलाम ना करें। यूं ही जो शख्स खुतबा, तिलावत कुरान, हदीस, मुज़ाकरा इल्म, अजान और तकबीर में मशगूल हुआ हो, इस हाल में उनको भी सलाम ना किया जाए, और अगर कोई सलाम कर दे तो उन पर जवाब देना लाजिम नहीं। तीन, जो शख्स शतरंज, चौसर, ताश वगैरह कोई नाजायज खेल खेल रहा हो, या गाने बजाने में मशगूल हो, या पखाना या गुस्ल खाने में हो, या बरहना हो, उसको सलाम ना किया जाए। चार, आदमी जब अपने घर में दाखिल हो तो बीवी को सलाम करे। बाज जगह ये बड़ी गलत रस्म है कि मियाँ बीवी के इतने गहरे ताल्लुकात होते हुए भी एक दूसरे को सलाम करने से महरूम करते हैं। हालांकि सलाम जिसको किया जाता है उसके लिए सलामती की दुआ है। पांच, बेहतर सवारी वाला कमतर सवारी वाले को, और कमतर सवारी वाला पैदल चलने वाले को, और पैदल चलने वाला बैठे हुए को, और छोटा बड़े को और थोड़े ज्यादा को सलाम करें। सलाम से मुताल्लिक शरई मसाइल की मजीद मालूमात के लिए बाहर शरीयत हिस्सा 16 का मुताला कीजिए। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए।